آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں حضرت سیدنا مولانا شہاب الدین مخدوم انیس الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ جو مدار ٹیکری منڈی میں ہے، تو آپ زیارت فرمائیں۔ چلتا ہوں آپ یہاں پہ نوٹس کیجئے کہ یہاں پہ بہت سارے پرندے نا اپنی آواز سے چلچلا رہے ہیں، جو سننے میں بہت اچھا لگ رہا ہے۔ تو آپ کو لے چلتے ہیں میں درگاہ کی اور آپ زیارت کر رہے ہیں حضرت سیدنا مولانا شہاب الدین مخدوم انیس الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کی جو مدار ٹیکری میں ہے، اور یہاں پہ چل رہی ہے صفائی۔ چلیے تو آپ کو ایک اچھی سی لائن سناتے ہیں جو یہاں پہ لکھی گئی ہے۔ ان کا ایک سجدہ ہے، ہو کرم ماکتو پہ سرکار انیس الرحمن ہے بڑا آپ کا دربار، انیس الرحمن مانگو کربل کے شہیدوں کا حوالہ دے کر، نہ کریں گے کبھی انکار انیس الرحمن ہے فیض و کرم کا وہ چشمہ دربار انیس الرحمن، اب تک نہ کسی مانگتے نے سنا انکار انیس الرحمن از پے شے سکندر مخدوم انیس الرحمن، یہ نگاہیں لطف و کرم بر حال بے کشا، یہی سیم چیز یہاں پہ آج یہاں پہ جمعرات ہے اور جمعرات کے دن یہاں کے چاہنے والے آئے ہوئے ہیں یہاں پر، اور آپ دیکھ رہے ہیں چاہنے والوں کی بھیڑ۔ تو ہم آپ کو زیارت کرائیں گے اندر۔ یہ بابا حضور کی مزار مبارک ہے، اور ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں کی پہلے سجاوٹ، پھر ہم آپ کو کرائیں گے زیارت۔ یہ دیکھیے سب سے اوپر جھومر لگا ہوا ہے، اور جھومر کے اوپر پھولوں سے سجایا گیا ہے۔ یہ پورے کلر سے یہاں جو ہے سارے کلر کو بہت اچھے رنگ سے سجایا گیا ہے، جو دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے، اور چاروں طرف عربی میں کلمات لکھے گئے ہیں جو ہر مومن مسلمان کو پڑھنا چاہیے، اور ہر وقت ہمیشہ پڑھنا چاہیے۔ یہ گنبد کا وہ ایریا ہے جو گنبد کے نیچے کا ہوتا ہے، اور وہاں پہ اس طریقے سجاوٹ ہے۔ یہ پورے لائٹ پنکھے شاید بہت ساری چیزیں ہیں جو کافی اچھی دیکھنے میں لگ رہی ہے۔ یہ جالی جو بہت ہی سندر ہے، بہت ہی اچھی ہے، بہت ہی اچھا یہ جالی۔ تو ہم آپ کو زیارت کراتے ہیں حضرت مولانا مخدوم انیس الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور آپ بھی زیارت فرمائیں اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ یہ آپ کا مزار مبارک آپ حضرت سیدنا مولانا شہاب الدین مخدوم انیس الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ زیارت کر رہے ہیں، ان کے مزار مبارک کی آپ زیارت کر رہے ہیں۔ آپ زیارت فرمائیے اور اپنے سلام عرض کریں، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کے لیے طلب ظاہر کریں۔ ابھی آپ سجدہ جو سن رہے تھے، تو یہ وہ انیس الرحمن ہیں کہ جو کبھی کسی کی دعا کو خالی نہیں کیے، کہ کبھی انکار نہیں کیے، سب کو جھولی بھر بھر کے دیے۔ تو آپ بھی جھولی فرمائیے، پھیلائیے، دامن پھیلائیے، اور ان سے اپنی دعاؤں کو طلب کیجیے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کو کبھی خالی نہیں رکھ دے گا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ زائرین بوسہ لے رہے ہیں اور اپنے محبوب کے دامن کو چوم رہے ہیں، اور یہ شوبھا کو اور بڑھاتی ہے یہاں کی بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی شاندار دیکھنے میں جھومر جو چار چاند لگاتا ہے۔ تو چلیے آپ کو وہ کچھ خاص سے بات بتاتے ہیں۔ اور یہ ہے دوسرے طرف کا گیٹ جو کافی خوبصورت ہے، تو میں دوسرے گیٹ سے بھی آپ کو زیارت کراتا ہوں، جو مزار شریف کے ٹھیک سامنے سے یہ گیٹ ہے۔
ये हजरात बहुत यहाँ अपना खिदमत करते हैं और काफ़ी मेहनत और लगन से करते हैं। और आप ये जो दरगाह की ज़ियारत कर रहे हैं, ये पहुँचे हुए बुज़ुर्ग हज़रत सैयदना मौलाना शहाबुद्दीन मखदूम अनीसुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह की है, तो आप भी बोशा ले सकते हैं। अभी हुजूर की मज़ार की ज़ियारत कर सकते हैं और दीदार कर सकते हैं। तो आप ऐसे ही अपने महबूब मखदूम अनीसुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह की ज़ियारत करें। और आपको एक मैं ख़ास चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, और वो है हुजूर का सिजरा शरीफ, जो बहुत बड़ा सिजरा शरीफ है। तो आप जब भी आएँ तो सिजरा पे ध्यान जरूर दें और सिजरा शरीफ को ज़रूर पढ़ें। आपको मैं शुरू से पढ़ा रहा हूँ, शुरू से दिखा रहा हूँ, और आप पढ़िए। अल्लाह पाक आपको इस सिजरा के सदक़े तुफ़ैल में आपकी तमाम दुआओं मुरादों को कबूल और मकबूल फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ का और ये चीज़ें यहाँ के तफसीर के बारे में मौलाना साहब है, उनसे मैं आपके बारे में बताऊँगा, इनकी पूरी कहानी और वाक़या। तो ये है दरगाह शरीफ, जो अभी आप ज़ियारत फरमा रहे थे, और ये रहने वाले इलाहाबाद के थे। और हज़रत के विशाल हुए 116 साल हो चुके हैं। तो चलिए, और इससे ज़्यादा हमसे ज़्यादा तफसीर में जानने के लिए हम यहाँ के जो मौलाना साहब हमेशा रहते हैं, उनसे हम आपकी बात कराते हैं। आप सुनिए उनकी ज़ुबानी। मज़ार औलिया से फैज़ हासिल कर ले गाफिल, मज़ार औलिया से फैज़ हासिल कर ले गाफिल, हमेशा ज़िंदा रहते हैं, कहीं मरने वाले हैं। निगाह वली में ये तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस आस्ताने पे खड़े हुए हैं, यारिफ़ बिल्लाह आशिक़ रसूलुल्लाह हज़रत मौलाना सैयदना शेख शहाबुद्दीन अल-मारूफ़ मखदूम मौलाना अनीसुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह क़ादरी, सोहरवर्दी, चिश्ती, फ़करी, रहमानी, सिकंदरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का आस्थाना है, जो हर मज़हब मिल्लत, हर धर्म के लिए एक सा है। यहाँ लोगों के धर्म नहीं देखे जाते, बल्कि लोगों के दिल देखे जाते हैं। बुज़ुर्गों के आस्थाने पे लोग आते हैं और मन की मुरादें मांगते हैं, और इस दर से मुरादें मिलती रहती हैं। मौलाना सैयदना शेख शहाबुद्दीन अल-मारूफ़ मखदूम मौलाना अनीसुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह तकरीबन 200 साल पहले जबलपुर, लगभग 200 साल पहले इलाहाबाद से जबलपुर तशरीफ़ लाए और दीन मतीन की खिदमत की। आपके पीर व मुर्शिद हज़रत सैयदना सैयद मीर सिकंदर अली इलाहाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आपको जबलपुर पहुंचाया था, और जबलपुर ये आने के बाद दीन मतीन की खिदमत की। वहाँ ताला बहुत से लोग आपके हाथों पे दाखिल इस्लाम हुए, और बफ़ैज़ बकरामत बुज़ुर्ग हैं। हर यहाँ से जो आता है मन की मुरादें पाता है। मौलाना शहाबुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह को तकरीबन 116 साल हो गए विसाल किए हुए, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं, और उससे बड़ी शानदार शान और शौकत के साथ मनाया जाता है। जो ज़ेर एहतमाम जबतुल कुरैश इसकी जिम्मेदारी लेती है उर्स की, और जबतुल कुरैश का हर शान शौकत के साथ उनका उर्स मनाया जाता है, और शरीयत के दायरे में रहकर आपका सिलसिला मुबारक जो है हज़रत सैयद सिकंदर इलाहाबादी रहमतुल्लाह अलैह से होता हुआ लखनऊ हज़रत फ़तेह अली शाह रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मौलाना सैयद अब्दुर्रहमान लखनवी रहमतुल्लाह अलैह, जो हज़रत अब्दुर्रज़्ज़ाक़ मासिरी रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद हैं, उनसे ये सिलसिला आपका सिलसिला क़ादरिया है। आपका सिलसिला क़ादरिया भी है, कलंदरिया भी है, फ़खरिया भी है, साबरिया भी आपका सिलसिला है, साबरिया सिलसिला भी है, सोहरवर्दिया भी सिलसिला है। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 14 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र को आपका उससे बड़ी शान और शौकत के साथ मनाया जाता है। जब ये आस्थाना बनाया जा रहा था तो बहुत बड़ा पहाड़ आपके सिंगाने पे था। बहुत मज़दूरों को बुलाया गया, मद्रासियों को बुलाया गया तोड़ने के लिए, लेकिन वो पहाड़ हिलने के लिए तैयार नहीं था। टूटना तो दूर की बात, हिलने के लिए तैयार नहीं था। तो लोगों ने हाथ जोड़ा कि हुज़ूर अगर आपको आस्थाना अपना बनवाना है तो पहाड़ आप जो है दूर कर दें, तब हम लोग आस्थाना बना पाएंगे। तो रात को कहीं गए और सुबह जब आके देखे तो
200 मीटर की दूरी पर वो पहाड़ पड़ा हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह ये वो आस्थाना है कि जहाँ से लोगों ने मांगा, लावलद आए हैं तो साहिब औलाद हो गए हैं, गूंगे आए हैं तो इस दर से उनको जबान मिल गई है। ये वो आस्थाना है, इसलिए कि बुज़ुर्गों के मामलात ऐसे हुआ करते हैं कि छुपे हुए होते हैं, अपने मामले को ज़ाहिर नहीं करते, लेकिन जब अल्लाह का हुक्म होता है किसी चीज़ के लिए तो ये अपने आप को ज़ाहिर भी करना पड़ता है। लेकिन अब फिर भी मौलाना सैयदना शेख साहबुद्दीन अनीसुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह ने हत्तल इम्कान आपने जो है चिल्ला वजीफ़ा किया और बहुत से विरद वज़ाइफ किया, बहुत से इनके विरद वज़ाइफ हैं। ऐसे भी वजीफ़े आप किया करते थे कि जब अपने हुजरे में रहा करते थे तो हर जिस्म का एक हिस्सा अलग हो जाया करता था, यानी अपने जिस्म का एक हिस्सा अलग हुआ जाता था, और जब आप वजीफ़े से जब फारिग होते थे तो आपका पूरा जिस्म जो है जुड़ जाया करता था। ये ऐसे अल्लाह के वली हैं, हम उनके आस्थाने में बैठे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनके फैज़ व करम से हम सबकी जोड़ी को बनाए। और ये वो आस्थाने हैं कि आप अल्हम्दुलिल्लाह आज हिंदुस्तान के बड़े बड़े आस्थाने गरीब नवाज़ सरकार से लेकर महबूब इलाही, साबिर पाक, वारिस पाक, ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अनीसुर रहमान हुज़ूर दादा मियाँ, ये सब आस्थाने ऐसे हैं जहाँ कौमी एकता और अखंडता की मिसाल मिलती है। यहाँ जो है हर धर्म के लोग आते हैं और दिल की मांगी मुरादें पाते हैं। यहाँ मजहब व मिल्लत और धर्म नहीं देखा जाता, यहाँ तो लोग दिल निछावर करने के लिए आते हैं और दिल से मांगते हैं और दर से लोगों को मिलता है और फैज़ याब होकर जाते हैं। बहमदी ताला हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इनके फैज़ व बरकत हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाए और हम सब के दामन को गौहर मुराद से भरता रहे और इनका फैज़ और इनका करम हम सब पर जारी व सारी रहे। तो आप देख रहे थे अभी जैसा हजरत फरमा रहे थे और काफ़ी इनके बारे में बताया और काफ़ी जलवा और काफ़ी पहुँचे हुए बुज़ुर्ग थे। ये वो बुज़ुर्ग का आस्थाना है जो करीब 116 साल हो गया विसाल फरमाए हुए, और काफ़ी तो हम कहेंगे कि जो जबलपुर के रहने वाले हैं मैक्सिमम सभी लोग तो जानते ही हैं, लेकिन दादा मियाँ के नाम से जानते होंगे, लेकिन ये नहीं जानते होंगे इनको विशाल किए 116 साल हो गए और इनके करामात वगैरह जो थे और इनके क्या क्या मौलाना साहब के नाम से इनको जानते हैं और इनके जितने भी सारी चीज़ें हैं। जैसे अभी हज़रत ने बताया कि ये जब चिल्ला में बैठते थे तो इनकी शरीर के हर हिस्से अलग अलग हो जाया करते थे और ऐसी चीज़ें जो कम लोग जानते हैं। तो मेरा यही टारगेट है कि ऐसे ऐसे बुज़ुर्गों को जिनकी मज़ारें हैं या ऐसे जो बुज़ुर्ग हैं जो आप नहीं जानते उनके बारे में, तो उनके बारे में आपको बताना। तो ऐसी ही जानकारी जानने के लिए आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, तब मुझे पता चलेगा कि आप मेरे वीडियो को सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि इम्प्रेशन से तो आप ये दिखाई जाता है कि मेरे वीडियो को कितने लोगों ने देखा, लेकिन आपका लाइक ही हमें सपोर्ट करेगा। तो हम और ऐसे बुज़ुर्गों के वाक़या और बुज़ुर्ग के विसाल तक, जन्म से लेके विसाल तक उनके पीरो मुर्शिद सारी कहानियाँ आपको बताते रहेंगे और ऐसी ज़ियारत कराते रहेंगे। आप हमें दीजिए इजाज़त अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए शुक्रिया।